Welcome back, friends. Today we will start our new tense. As you know, we have practiced, we have learned many tenses, and day by day we are increasing our strength, our tenses. Tense means a sentence structure by which we put the words in a right order. Okay? Today we will start past indefinite tense. In yesterday's class, we practiced, we learned present indefinite tense. ठीक है? Okay, is it clear to you? Now, past indefinite tense. As usual, first we will try to understand that if sentence is there, filling the blanks is there, how to fill that blank. First of all, we will understand that. In past indefinite tense, there I told you many times there are three words which tell us about the tense. Means yesterday, last, ago. These are the past tense word. ये किसी में भी आ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ past indefinite tense में ही आएंगे. Basically, these are the words which show us that it is the past tense. It may be past indefinite, it may be past continuous tense, or it may be any past perfect continuous tense. So if you find that yesterday, last, ago is there, it simply means that it may be the past indefinite tense. So the sentence structure will be the sun shone brightly yesterday. Second form, shines on. Yesterday means a word which show about the past tense. Okay? तो बिल्कुल easily in a simple way I am trying to reach you. The second thing is that when, since as a conjunction, आपने connector conjunction सुने होंगे. Conjunction means which connect the two sentences. Or when, since means since then, जब से तब से. It means since then, since when these is shown there. These words are there, means since is there, it means simply means that if it is, remember, let me repeat it again. If the sentence has the since word and as a conjunction and its meaning is since then or since when, means jab se tab se, then it will be the past indefinite tense. See the sentence since beginning. It is an hour. एक घंटा हो गया. एक घंटा है. जब से, यहाँ since का मीनिंग क्या है? जब से ट्रेन लेफ्ट, जब से ट्रेन गई. Okay? When there is a compulsion, when there is a stress given, when it is said that जोर लगाया गया है, जरूर, necessity, has to, at that time, did भी हम यूज करते हैं. Means you did come. It means simply कि जरूर आना. You should come, you must come, you have to come. Okay? You did come. अगर did उसमें इस तरह से है. Fourth thing, past indefinite tense is used. Past indefinite tense used as a past habit. Used to. वो अक्सर वहां जाया करता था, खाया करता था, पिया करता था, खेला करता था. Means when it shows a habit in the past.
At that time, we use used to. And remember, used to, then first form of the verb. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है यूज्ड टू के बाद, और ये पास्ट में किसी हैबिट को ही शो करता है. ओके. समटाइम्स यू कैन फाइंड दैट यू आर not able to put the did not, you have to put never. और did not के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मीन्स did not प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. बट if never is there, you have to put the second form. Okay. Next thing, if a sentence is beginning with the who, उसके जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन रिमेनिंग वर्ड्स. ओके. एंड as I told you, it may be used as past habit means Gandhiji always spoke the truth. So अब मैं इसको हिंदी में तुरंत क्लियर कर देता हूं कि जब तीन वर्ड्स पास्ट को बताने वाले हों, यस्टरडे, लास्ट, अगो, तो आप सोच लेना कि पास्ट टेंस है. पास्ट टेंस कोई सा भी होता है, हो सकता है. अगर कोई खास चीज ना हो तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. सन, शॉन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया, यस्टरडे आ गया. सिंस जब कनेक्टर की तरफ से यूज हो, जब से, तब से, जैसे इट इज एन आवर सिंस ट्रेन लेफ्ट. अब आप देखिए कि सिंस ही एक ऐसा है जो प्रेजेंट और पास्ट को जोड़ रहा है. ठीक है. अदरवाइज द थिंग्स विच हैज गॉन कैन नॉट बी रिलीव्ड. So past and present don't have any friendship, but still it maybe have a friendship with the connector of sense. Okay. जब किसी चीज पे जोर दिया जा रहा हो, जरूर आना, जरूर आना, जरूर आना, है ना, शाम को पार्टी करेंगे, पार्टी में जरूर आना, तो डिड. यूज्ड टू, जाया करता था, खाया पिया करता था. नेवर, डिड नॉट, आपको पता ही है कि जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इस टेंस का, तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. लेकिन यहां पर अगर बाय द वे नेवर लगाना पड़ रहा है, तो नेवर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी. ओके जी. उसके बाद आपको एक बात और मैं रिपीट कर दूं कि अगर कोई पास्ट हैबिट शो की गई है किसी पुराने आदमी की, जैसे गांधी जी के बारे में हमने ये सेंटेंस बनाया है, तो उसको भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे. अगर आपको याद हो, yesterday also we learned that in the present indefinite tense, this tense is generally present indefinite tense is generally used to show the habitual action. Likewise, if the habitual actions are in the past, that is also shown in the past indefinite tense. Okay. I think it is clear to you. Okay. Ab, we will learn how to translate it. In translate it, कि आपने ये देखना है कि सेंटेंस कैसे समाप्त हो रहा है. सेंटेंस इसमें हिंदी में समाप्त होता है आ ई ए, मीन्स खाया पिया रोया, आई गई सोई, आए गए खाए पिए, मीन्स दैट इट शोज द कंप्लेशन इन द पास्ट. और इसमें याद रखना है कि आपने ये जो पुरानी पहचान है, ता था ती थी ते थे, वो जनरली यूज नहीं होते हैं, क्योंकि वो ग्रामेटिकली गलत है हिंदी में भी. कि वो रोज आया करता था, वो आया करता था, तो वो एक अलग से बनेगा, उसमें यूज्ड टू लगेगा. ठीक है. तो इसकी हिंदी में जो पहचान है, आ ई ए, खाया पिया, आए खाए पिए और खिसके. ठीक है ना, कि पार्टी वाले किसके आए और पिए और खिसके, सेम वही हो रहा भाई. जब हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे. एक बात इसमें मैं आपको और क्लियर कर दूं कि दिस इज द ओनली टेंस और सेंटेंस इन इंग्लिश इन विच सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, नोवेयर एल्स. ठीक है.
तो सेकंड फॉर्म सिर्फ यहीं पे यूज होती है, वो भी, एंड दैट इज आल्सो इनटू द सिंपल टेंस, इन असर्टिव सेंटेंस, इन डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जो सिंपल सेंटेंस है उसमें ये यूज की जाती है। जैसे ही वेंट टू प्ले, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और फिर ये कनेक्टर और प्ले। तो इस तरह से ये वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही यूज करता है। इसमें जब हम इसका नेगेटिव कंस्ट्रक्शन करेंगे, देन इट विल बी द सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, देन, यस देन, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Did not already there. Did is also second form. That's why we cannot use the two second forms in a sentence. आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि did already second form है, do did done, तो इसलिए एक ही सेंटेंस में दो दो हम यूज नहीं कर सकते। तो आपको did not के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे he did not go to play, आपने ये नहीं करना है कि he did not went to play. No, no. Okay, I think it is clear to you. When we will construct it as an interrogative, जब हम इसको interrogative के रूप में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? Interrogative में वही as usual हम इनके आपस में subject और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी जगह को इंटरचेंज कर देंगे। डिड आगे चला जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस विल स्टार्ट विद द डिड, देन सब्जेक्ट, एंड देन रिमेंबर अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मीन्स डिड ही गो टू प्ले। अब सेंटेंस अगर नहीं और क्या, मीन्स इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, तो एज यूजुअल हमने वही करना है कि डिड से सेंटेंस शुरू करना है। डिड, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, डिड ही नॉट गो टू प्ले। ओके, और अगर सेंटेंस में आया करता था, खाया करता था, पिया करता था, सोया करता था, means if it shows the habitual action of the past at that time, as I told you earlier, we will use used to plus first form, और वैसे भी जनरली टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ओके, एंड लेट मी रिपीट अगेन, नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैं क्यों बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो यू मे थिंक दैट आफ्टर नेवर आल्सो द वर्ब इज द फर्स्ट फॉर्म। नो, नेवर के बाद आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिड नॉट ऑलरेडी सेकंड फॉर्म, सो वी कैन नॉट यूज टू सेकंड फॉर्म साइमल्टेनियसली टुगेदर। लाइकवाइज नेवर जो है वो अपने आप में वर्ब ही नहीं है, ठीक है, तो नेवर के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। सेकंड फॉर्म लग के ही वो बन जाएगा कि इट इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, ओके, यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दैट। सो let me explain you that today's word. The first word is chamakna, means glow, means giving light. उसके लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है साइन। जैसे सूरज चमकता है, किसी बर्तन की सतह बहुत चमकदार है, शाइन। If you are reading for someone else loudly, that is the read out. अगर किसी को पढ़कर सुना रहे हैं तो, if you are blaming someone, if he is put on a blame, accuse of, means accuse of theft, चोरी का आरोप, removing the cloth, means take off, पास होना, सफल होना। अब देखिए पास होना, अब वो पास है जो वो सक्सेस, सक्सीड से ज्यादा बेटर वर्ड इज द गेट थ्रू, कि ये वो अपनी जीवन की परीक्षा में पास हो गया, ठीक है, उसको जो हमने चुनौती दी थी वो पास हो गया, गेट थ्रू।
पत्थर फेंकने के लिए जो सही वर्ड है वो है फ्लिंग, थ्रो। थ्रो इतना अच्छा वर्ड नहीं है। द राइट वर्ड इज द फ्लिंग, FLING, फ्लिंग। किसको? हुम, भाई किसको बुलाया है? हुम यू हैव कॉल्ड। और जो हम वाद विवाद करते हैं, हम जो डिस्कस करते हैं, डिस्कस और डिबेट में फर्क ये है कि डिबेट में यू ट्राई टू प्रूव योर पॉइंट इज द राइट। पखवाड़ा मीन्स 15 days, that in English called the fortnight, FORTNIGHT. And the Swars means 10 years. For 10 years, the English has a special word that is the decade. Okay? तो खूब चमको भाई, and means shine इनकी स्पेलिंग yourself. क्या बताई थी सर? Hmm? Fling, FLING, fling. Fortnight की FORTNIGHT, fortnight. Okay? So shine yourself, read out newspaper for others, and save yourself of all the accuse of all things, and don't remove your clothes in the public. Okay, now today we will learn name of the body parts. Generally, you know body parts: forehead, eyelashes, eyebrow, eyes, nose, nostril, lips, moustache, beard, okay, throat, neck, shoulder, finger, thumb, wrist, elbow, armpit, goad, lap, till. This one is mole. ठीक, fist, मुट्ठी हो गई। ठीक है, ये जा, पैर का अंगूठा, टो। ओके, और वो कई बार होता है ना, वो मस्सा सा बन जाता है जो थोड़ा सा उभर के आता है, दैट इज द मार्ट। चेस्ट, breast, and these ribs, okay, nail, stomach, back, you know all the things, thighs, knees. So you can go through more words for the body parts. I have given a general idea, a simple words which generally we use. Okay, तो आपको ये चीजें भी अच्छे ढंग से सीखनी है। आई एम गिविंग यू नाउ ऑलमोस्ट 20 words, 10 words journal words and 10 words somewhere profession, trees or this and that, sometimes sounds. तो अब धीरे धीरे हमने इसको बढ़ा लिया है, हमको इसको अच्छे ढंग से करना है। एंड आई एम रिपीटेडली सेइंग, इफ यू आर नॉट कंस्ट्रक्टिंग द sentences, you are playing with your time. And remember, nobody can play with the time. Time always play with us. हम समय के साथ नहीं खेल सकते, हम समय पास नहीं कर सकते। क्या कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हो। टाइम कभी पास कर ही नहीं सकते, टाइम हमें पास करता है। सो मेक प्लान एंड गो अहेड। आई थिंक इट इज enough for today, and please go to our introduction on our YouTube section. Thank you, take care, best of luck.